You are the way in the
Once again, good morning, church. Really, that was a good worship. बहुत ही अच्छा आराधना था. Let's give them a big hand. Good to see everyone this Sunday morning. सभी को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है इस रविवार सभा में. Today, Pastor and his family they are in Andheri. पास्टर और उनका परिवार जो है अंधेरी गए हैं. So pray for them. उनके लिए प्रार्थना कीजिए. Also, we had a good time. The ladies had a good time. Ladies' time last week. स्त्रियों का बहुत ही अच्छा समय था. And also in the month of March. और मार्च के महीने में as already announced there will be a couples time plan. जैसे पहले बताया था कि जोड़ों का समय होगा. So the date is not yet fixed. जो तारीख है वो अभी तक चुना नहीं है. But tentatively plan is made for the month of March. पर वो मार्च के महीने में होगा. So we'll share more details on this in our WhatsApp group. उसके बारे में अधिक जानकारी मिलेगा आपको. So just before we take the offering. ऑफरिंग के पहले. Just want to thank as we have begin this new year. हम धन्यवाद करना चाहते हैं जैसे हम इस नए साल की शुरुआत की है. As many already know that besides our offering and tithes, we have something called as faith mission. आप सभी को पता है कि ऑफरिंग के अलावा भी फेथ मिशन करके एक चीज़ है. Faith mission is it's a promise between you and God. फेथ मिशन वो है जो आप और परमेश्वर के बीच का एक वायदा है. That is some certain amount you will give every month. कि आप कुछ रकम जो है आप परमेश्वर को दोगे. Or maybe quarterly, once in 3 months. या फिर 3 महीने में एक बार. That is up to you. You can decide. ये आपके ऊपर है. आप उसकी चुनौती कर सकते हैं. But you need to pray about it. पर आपको इसके लिए प्रार्थना करना पड़ेगा. Because this
amount we are going to use it separately. क्योंकि ये जो पैसा है इसका हम अलग तरीके का इस्तेमाल करेंगे It will be only used for our mission work. जो हमारे मिशन के लिए सिर्फ इस्तेमाल होगा। So please pray about it, तो आप सभी प्रार्थना कीजिए। and you can contact us आप हमसे संपर्क कर सकते हैं in case you want to give for faith mission. आपको अगर किसी फेथ मिशन के लिए देना है तो। So let's pray for the offering. आइए प्रार्थना करते हैं। Father God, we want to thank you, Lord. परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। Today, whatever we have, O Lord, आज जो कुछ भी हमारे पास है प्रभु, each and everything belongs to you, O Lord. हर एक चीज़ आपके लिए परमेश्वर पिता। Today, we want to thank you, Lord. आज हम धन्यवाद करना चाहते हैं आपको। Yes, Lord, we were all in darkness, O Lord. हम सब अंधकार में थे प्रभु, But you brought us into your light, O Lord. पर आपने हमें आपके उजाले में लेके आए। Thank you, Lord, for opening our eyes, O Lord. धन्यवाद आपने हमारे आंखों को खोले प्रभु। Thank you for this gift of salvation, O Lord. धन्यवाद इस उद्धार का तोहफे के लिए प्रभु। Lord, we pray for each and every member in this church, O Lord. हम हर एक कलीसिया के सदस्यों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। Whatever their needs, O Lord. उनकी हर एक ज़रूरतें जो भी होगा, Their spiritual needs चाहे वो आत्मिक ज़रूरत or होगा their physical needs, O Lord. या फिर उनका जो भी आर्थिक ज़रूरत होगा, We believe, O Lord, हम विश्वास करते हैं प्रभु that you are there, O Lord, आप हो and you will fulfill, O Lord. और आप उसे पूरा करोगे। Today, Lord, we want to thank you, Lord, आज हम आपको धन्यवाद करना चाहते हैं for this new day which you have given to each one of us, O एक Lord. नया दिन जो आपने हमें दिया है। Help us, O Lord, हमें मदद करना प्रभु, to make good use of our time, O Lord, हमारे समय का अच्छा इस्तेमाल कर so सकें that we may always encourage other people, O Lord. ताकि हम दूसरों को प्रोत्साहन कर सकें प्रभु। Once again, Lord, we want to thank you, हम वापस धन्यवाद करना चाहते हैं प्रभु। and also we pray for our today's message, O Lord, आज का संदेश को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। that speak to each one of us, O Lord, आप सभी से बातें करना प्रभु through this message, O Lord, इस संदेश से परमेश्वर and touch our hearts, O Lord. और हमारे हृदय को आप छूना। In Jesus' most precious name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आँखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आँखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना,
एक बार ऐसे कहा गया था, Somebody was asking like if God knows everything, एक जन ऐसे पूछ रहे थे कि अगर परमेश्वर सब कुछ जानता है तो then why do we need to pray? हमको प्रार्थना करने की जरूरत क्यों है? That's a really good question. ये प्रश्न बहुत अच्छा था। If God already knows what our needs are, अगर परमेश्वर को हमारी जरूरतें पहले से मालूम है तो so why should we pray? हमको प्रार्थना करने की जरूरत क्यों है? So let us today understand हम आज ये समझेंगे the purpose of prayer. प्रार्थना क्यों करना है। Because unless we understand the purpose, जब तक हमको समझ में नहीं आएगा like why do we need to pray, प्रार्थना क्यों करना है, we will never be motivated to pray. हमको एक उत्साह नहीं मिलेगा प्रार्थना करने के लिए। Because as I said, that person said, oh, God knows everything. जैसे उस व्यक्ति ने कहा कि परमेश्वर सब कुछ जानता है, So why should I pray? मुझे प्रार्थना करने की जरूरत क्या है? And it can happen also many times और ऐसे हो सकता है बहुत बार that we may not give importance to prayer. हम प्रार्थना को उतने महत्व नहीं देंगे। Just imagine now, for example, this is a building, आप सोच सकते हैं कि ये हमारा जो एक बिल्डिंग है and in this building there are many rooms. और इस बिल्डिंग में बहुत सारे कमरे हैं। So one room is like a room which is of knowledge, एक जो कमरा है वो ज्ञान का कमरा है, or is another room is like your job opportunities, एक कमरा जो दूसरा कमरा जो है आपके काम का जो कमरा है, and each room has different blessings. और हर एक जो कमरे में अलग अलग आशीष है। But one thing is that all the rooms are locked. और ऐसा है कि हर जो कमरा है वो ताला से लगाया गया है And there is only one key to open. और एक ही जो चाबी है उसको खोलने के You लिए। can say like in the hotels if you go, आप अगर होटल में अगर जब जाते हो तो sometimes the guest does not come out. हमारी जो गेस्ट है वो जो बाहर नहीं आए, So what the hotel person does, वो जो होटल के जो व्यक्ति है वो क्या करते he हैं, will take the master key and he will open it. वो जो अलग सा चाबी उनके पास जो रखे रहते हैं उनसे वो खोलते So हैं। same thing, like there is one key to open all the rooms. और ऐसे ही एक ही चाबी है पूरे कमरे को खोलने के लिए। That's how we can call like as a prayer. और इसी को हम प्रार्थना कह सकते हैं। Like prayer we can call it as a master key, प्रार्थना को हम ये मास्टर की बोल सकते हैं, which can open all the rooms. वो जो हर एक कमरे को खोल सकते हैं। These rooms of different blessing. जो अलग अलग कमरा जो आशीष से भरा हुआ है उसको उस चाबी से खोल सकते हैं। But the problem is लेकिन समस्या यह है कि the choice is ours. चुनाव हमारा है, Whether you want to use that key आपको वो चाबी उपयोग करना है to open the door, उस दरवाजे को खोलने के लिए, or you can make a choice not to open the door नहीं तो आप ऐसे चुनाव कर सकते हैं कि वो दरवाजे को नहीं खोले if you do not use that key. अगर वो आप चाबी नहीं उपयोग करते हो So तो। this is like a picture of how prayer works. ये एक ऐसा पिक्चर है कि ये प्रार्थना कैसे काम करता है हमारे जीवन में। God automatically won't do everything, परमेश्वर सब कुछ ऐसे नहीं करेंगे, for God has given us that key. परमेश्वर ने वो जो है एक चाबी हमको दिया है The key is called prayer. और वो चाबी को बोलते हैं प्रार्थना। So if you don't use that prayer key, अगर वो प्रार्थना का चाबी हम अगर उपयोग नहीं करते हो some तो of our doors will always remain. हमारा जो कुछ दरवाजे हैं हमेशा के लिए बंद ही रहेंगे, These are the doors of blessings. और ये जो दरवाजे जो है आशीष के दरवाजे हैं। So today we will see आज हम देखेंगे why we need to pray. हमको प्रार्थना क्यों करना है। Because what happens when we pray, जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है, we develop that relationship with God. हम परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध रखते हैं। So let us imagine for a moment, हम सोचते हैं like prayer didn't exist at all. अगर प्रार्थना अगर नहीं हो तो So then what would you do? आप क्या करेंगे। That means you don't have any way to contact God. आपको एक ऐसा कोई भी दरिया नहीं है परमेश्वर से बातचीत करने के लिए। If you are in trouble, if you are in problem, अगर आप कोई भी समस्या में हो तो आप कैसे बात करेंगे। prayer didn't exist, अगर प्रार्थना नहीं हो तो there is no way to contact God. कोई भी ऐसा दरिया नहीं है कि आप परमेश्वर से बात कर So पाए। in that case what will happen? ऐसे समय में तो क्या होगा, You will not be spending time with God. आप परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताएंगे, You will not be spending time worshiping God. आप आराधना नहीं करेंगे, You will be completely left on your own. आप खुद के इसमें रह जाओगे। But the good news is लेकिन अच्छी बात यह है कि that our God loves us परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, and He wants to stay connected with us all. परमेश्वर हमसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं। And He had done
this right from the very beginning. वो पहले से ये कर चुके हैं। Like for example, if you want to know like what happened in the Garden of Eden, जैसे मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि एडन के गार्डन में जो बगीचे में जो हुआ, like God used to come there परमेश्वर वहाँ पे आते थे and He used to spend time with Adam and Eve. परमेश्वर जो है आदम और ईव के साथ वो समय बिताते थे He used to speak to them. और वो जो है परमेश्वर उनसे बात करते थे। Same way today also, आज भी ऐसे ही है, God wants to speak to us, परमेश्वर हमसे बात करना चाहता and है that He does through prayer. और वो जो है वो प्रार्थना से करते हैं। So prayer, what happens? It develops a relationship, पर प्रार्थना जो है हमारे संबंध को बढ़ाता है and that's what God is doing right from the very beginning. और यही जो है परमेश्वर शुरुआत से कर रहा है। That He wants to like spend time with us, परमेश्वर हमसे हमारे साथ समय बिताना चाहता है so that we also can know Him in a better way. ताकि हम भी परमेश्वर को अच्छी तरह से जानें। So it connects our heart with God's heart. और ये जो प्रार्थना है हमारे हृदय को परमेश्वर के हृदय के साथ जोड़ता है। Many times what happen we make prayer like as a duty, कभी ऐसा हो सकता है कि प्रार्थना हम ऐसे समझते हैं कि वो एक हमारा काम है, or we get a ready-made book of prayer. और ऐसा भी होता है कि एक ऐसा किताब मिलता है रेडीमेड जो प्रार्थना का होता है। Once my friend was asking, एक बार मेरा एक मित्र ऐसे पूछ रहा था, he was telling me, वो मुझे बता रहे थे, I have a book. मेरे पास एक किताब है, He has a book for prayer for sickness. ऐसा एक किताब है, एक प्रार्थना बीमारी का किताब था, Like pray for sickness, pray for marriage. बीमारी के लिए एक किताब, विवाह के लिए एक किताब। It's not like book, but like every page there is one separate prayer. एक ऐसा किताब नहीं पर किताब के अंदर एक एक पन्ना रहता है उस So प्रार्थना like के बारे में। so many different like pray for this, pray for that. बहुत सारी अलग अलग चीजें अलग अलग प्रार्थना थे उसमें। So it was like a ready-made prayer. वो एक रेडीमेड प्रार्थनाएं की किताब ऐसे थी। So it can become like it is not coming from your heart. वो जो है वो आपके हृदय से नहीं आता है। Like it's not wrong to have that read ऐसा that नहीं है prayer, कि वो गलत बात है कि आप प्रार्थना पढ़े but you नहीं, should not by heart that prayer, लेकिन उसको ऐसे बाय हार्ट या सोच के याद करके नहीं बोलना है, because it should come from your heart. वो आपके हृदय से आना चाहिए। So what does the Bible say about prayer? परमेश्वर का वचन क्या कहता है प्रार्थना के बारे में? Psalm chapter 62 verse 8, भजन संगीता में ऐसे कहते हैं 62 में, it talks about how we need to pray. वो 62 में ऐसे बताते हैं कि हमको कैसे प्रार्थना करना चाहिए। Psalm 62 verse 8 says, pour out your hearts before Him. 8वें वचन में ऐसे कहता है कि आपके हृदय को उसके सामने रखिए। It's telling what is in your heart, put before the Lord. आपके हृदय में जो कुछ है वो परमेश्वर के सम्मुख रखिए। Many times what happens when people pray, कभी ऐसा हो सकता है कि जब व्यक्ति प्रार्थना करते हैं, we feel that a person who prays a very long prayer कभी कभी वो व्यक्ति बहुत लंबा प्रार्थना करते हैं is a very spiritual person. तो वो बहुत आत्मिक जीवन से बहुत अच्छे होंगे। But God does not measure like our length, like how much long we pray. परमेश्वर हमारे जो प्रार्थनाएं की लंबाई को मांगता नहीं है। He just wants us to pour out to Him वो सिर्फ एक ही चीज चाहता है कि आपके हृदय में जो भी है वो आप उनके सम्मुख में रखे, before God. परमेश्वर के सम्मुख। So prayer, what it does, प्रार्थना क्या करता है? it allows you to pour out before God. प्रार्थना जो है आपके जो कुछ हृदय में जो है वो परमेश्वर के सम्मुख रखने की कोशिश में रहता है। In James chapter 4 verse 8, जेम्स चैप्टर 4 में ऐसे कहते हैं, it says to draw near to God परमेश्वर के सम्मुख जाइए and He will draw near to you. और परमेश्वर आपके सम्मुख आएंगे। Sometimes you may say that God is inside of me. कभी कभी आप ऐसे बोल सकते हैं कि परमेश्वर हमारे अंदर है, Then why do I have to still draw near to God? तो मुझे परमेश्वर के पास क्यों जाना चाहिए? Like I want to give an example of a husband and wife. मुझे एक उदाहरण देना एक पति पत्नी के बारे में। You can say like during the early days of their marriage, विवाह के पहले दिनों में they may be very close to each other. वो जो है एक दूसरे के पास नजदीक रहते हैं या सम्मुख रहते हैं। They may spend more time with each वो other. लोग एक दूसरे के साथ कुछ बहुत ज्यादा समय भी बिताते हैं, But as years pass by, लेकिन जैसे साल बीत जाता है, due to various kind of problems, बहुत सारे अलग अलग समस्या के वजह से, or maybe due to some reason, कुछ भी अलग कारणों की वजह से sometimes it happens in their life. उनके जीवन में ऐसा हो सकता है
Even though the husband and wife are still living together, ऐसा पति पत्नी साथ में रह रही है, we will be spending time with each other. वो एक दूसरे के साथ समय बिता रहे हैं, It can even happen that their hearts are far away. लेकिन ऐसा हो सकता है कि उनके हृदय एक दूसरे से दूर हो चुके होंगे। We can proudly today call ourselves as Christians, लेकिन हम जो है गर्व से क्रिश्चियन कह सकते हैं, doing everything right, हम सही सब कुछ सही कर रहे हैं। maybe going to church regularly, हम कलीसिया हर रोज जाते हैं, doing Bible college. हम बाइबल कॉलेज कर रहे होंगे, But it can happen even with us लेकिन हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है that we are so busy in our life कभी कभी हम इतने बिजी हो जाते हैं, that we may be away from God. हम परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। And that example we can find in the Bible itself. हम ये जो ऐसा उदाहरण जो है परमेश्वर के वचन में भी देखते हैं। That we can, Jesus talks about the Pharisees. यीशु मसीह जो है फैरिसी के बारे में कहते हैं। The Pharisees are the most learned people in the Bible. फैरिसी जो है अगर बाइबल में देखेंगे कि वो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं। They study the law so much वो जो है लॉ के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। that they spend like from the entire childhood. वो जो है बचपन से ऐसे वक्त समय गुजारते हैं, They do a lot of study. वो बहुत पढ़ाई करते हैं। But what happened in the Gospel of Matthew, we see लेकिन मत्ती में हम ऐसे देखते हैं that Jesus is calling these Pharisees as hypocrites. यीशु मसीह जो है इस फरीसी को कपटी कहते हैं। Means and call them as whitewashed tombs. ऐसे है जो Like they are beautiful from outside, you can say, वो ऐसे बोल सकते हैं कि वो लोग बाहर से बहुत अच्छे लगते हैं, but inside they are unclean. लेकिन अंदर से जो है वो लोग साफ सुथरे नहीं हैं। Like they want to show that they are better than others. वो लोग दिखाना चाहते हैं कि हम सबसे अच्छे हैं, That oh, I have studied so much, हमने वो इतनी पढ़ाई की है, I know everything. मुझे सब कुछ मालूम है। And they used to treat others very badly. और वो जो दूसरों लोगों को बहुत अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करते थे, That's why like Jesus called them as hypocrites. इसलिए यीशु मसीह उनको कपटी कहते हैं। Yeah, the problem what happened with Pharisees यहाँ पे जो फैरिसी के साथ ऐसी समस्या है can even happen with us. हमारे साथ भी हो सकती है। They know everything about the Bible, उनको जो है बाइबल के बारे में सब कुछ मालूम है, but yet their hearts were away from God लेकिन उनके जो हृदय है परमेश्वर से बहुत दूर था, because they had forgotten क्योंकि वो भूल गए थे the reason why we need to pray. प्रार्थना क्यों करना है। Even the prayer, as I said, like they used to pray loudly ऐसे जैसे मैंने बोला वो लोग प्रार्थना भी बहुत जोर जोर से करते थे, so that everyone could notice them ताकि सब लोग उनको देख पाए, उनको सुन or पाए, they could hear them. उनको सुन पाए। So that's how God does not want us to pray. परमेश्वर ऐसा हमसे प्रार्थना नहीं करना चाहते हैं। In fact, the Bible says बाइबल ऐसे कहते हैं, when you pray, जब आप प्रार्थना करोगे go in your room आप अपने कमरे में जाइए, and whatever you do, आप जो भी कर रहे हो let it be done in secret. एक सीक्रेट में हो जाए, वो किसी को पता ना चले। It should be between you and your Father. ये जो है आपके पिताजी, आपका परमेश्वर और आपके बीच में होना चाहिए। So that's how like God wants us to pray. परमेश्वर ऐसे हमसे प्रार्थना करना चाहते हैं, Not like the Pharisees फरीसी के जैसे नहीं। who want to like show that they are the best. फरीसी ऐसा दिखाना चाहते हैं वो सबसे अच्छे हैं। So another reason why we need to pray, दूसरा जो कारण है जो हम प्रार्थना करना चाहिए, some things will not happen unless we pray. कुछ चीजें ऐसे नहीं हो सकते जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे। James chapter 4 verse 2, जेम्स के चैप्टर 14 इसमें दूसरे वाक्य में ऐसे कहते हैं, it says that you do not have because you do not ask. आपके पास नहीं है क्योंकि आप पूछते नहीं हो। In other words, like we can say, दूसरे ऐसे कह सकते हैं दूसरे इसमें, if you do not use that key, आप अगर वो जो चाबी उपयोग नहीं करेंगे तो so the doors won't open. वो जो कमरा है वो खुलेगा नहीं। So today like you can see that God can change any circumstances. आप देख सकते हैं कि परमेश्वर कोई भी परिस्थिति को बदल सकता है। If you use that key अगर आप वो जो चाबी को उपयोग करेंगे तो and if you call out to Him for help. आप परमेश्वर को बुलाएंगे तब। In the Bible, in the Old Testament, पुराने नियम के बाइबल में ऐसे कहते हैं, there is a king, एक राजा है, Jerusalem king, his name is Hezekiah. यरूशलेम में एक राजा था, उसका नाम हेजेकिया था। So this king, ये Hezekiah, जो राजा हेजेकिया, he was threatened by the king of Assyria. उनको धमकी मिली थी एक दूसरे राजा से, सीरिया के राजा से। So king Hezekiah, ये जो किंग जो राजा हेजेकिया है,
Like he knew, he was confident that he will be surely defeated. उसको एक ऐसा कॉन्फिडेंस था, एक ये था कि मैं जीत जाऊंगा। He was in such a bad situation वो ऐसे बुरी परिस्थिति में था, that he didn't have any option. उनके पास कोई और चुनाव नहीं था। But what he did, लेकिन उन्होंने क्या किया? the first thing that he did was he went and prayed. पहला चीज जो उन्होंने किया वो जाके प्रार्थना किए। He just asked God, वो परमेश्वर से पूछे, God deliver me from this situation. परमेश्वर ये जो परिस्थिति है उसे मुझे छुटकारा He देना। cried out his heart वो जो अपने हृदय से रो पड़े, about, he told God about this king of Assyria. परमेश्वर से बातचीत किए उन्होंने कि राजा सीरिया के राजा के बारे में। And we see that later on और हम ऐसे देख सकते हैं कि बाद में that God answered King Assyria. परमेश्वर ने उत्तर दिया किंग हिजकिय्याह को। In fact, God said परमेश्वर ने ऐसे कहा that because you have prayed to me तुमने मेरे सम्मुख आके प्रार्थना की है, इसलिए about that king of Assyria, वो जो कि राजा के बारे में, सीरिया के राजा के बारे में, and I have heard you. और मैंने आपको सुना। So we see in this story हम ये स्टोरी में, कहानी में ऐसे देख सकते हैं that when he was threatened, जब उसको ऐसे धमकी मिला तभी King Hezekiah did not panic. किंग हिजकिय्याह जो है वो डरे नहीं। He did not go and negotiate with the enemy. ना ही वो जो दूसरे राजा के साथ जाके बातचीत किए। Usually what happens when such thing happen, ऐसा होता है कि ऐसे जब होते हैं तब क्या करते हैं, people try to negotiate. जो लोग व्यक्ति जो है एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए जाते हैं। Okay, you take this portion of land ऐसा होता है कि तुम ये मेरा जो है इतना सा भाग ले लेना राज्य से, and I will keep the remaining और portion. बाकी का मैं मेरे पास रखता हूँ। But King Hezekiah did not do this thing. लेकिन किंग हिजकिय्याह ने ऐसे नहीं किया। He just went and poured out his heart to God. लेकिन उन्होंने क्या किया, परमेश्वर के सम्मुख जाके उनके हृदय से बातचीत की। And we see how God rescued him. और ये हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उसको कैसे छुटकारा दिया। He did not even use to King Hezekiah didn't use even his army. किंग हिजकिय्याह ने उनके जो सेनाओं को भी उपयोग नहीं किया। Not even his sword he had to use. उनके तलवार को भी उपयोग नहीं किया। If you know the story, like King Hezekiah, अगर आप जानते हो तो किंग हिजकिय्याह when he prayed, उन्होंने जब प्रार्थना किया, God sent his angel, परमेश्वर ने उनके जो एंजल को जो है भेजा, and that angel और वो जो एंजल है struck down 185,000 people. वो जो दुश्मन के सेनाओं को ऑलमोस्ट 1 लाख के सेना जो है उनको मार दिए In that गए है। Assyrian camp. वो जो एसीरियन के जो कैंप में So we see हम ये ऐसे देखते हैं that God can do what is impossible. परमेश्वर जो है असंभव चीज को कर सकता है। Yes, for man it may be impossible, एक मनुष्य को जो है वो असंभव हो सकता है, but for God everything is possible. लेकिन परमेश्वर को सब कुछ संभव है। So yes, in this story we can learn ये इस कहानी से हम ऐसे सीख सकते हैं। that the first thing what King Hezekiah did, राजा हिजकिय्याह ने पहली चीज क्या की, he prayed. उन्होंने प्रार्थना किया। If he had not prayed that day, अगर उन्होंने ऐसे प्रार्थना नहीं किए होते तो, and he would have panicked, वो अगर डरे हुए हो तो everything would have got destroyed. सब कुछ नाश हो सकता था। Sometime like this, King Hezekiah, हम कभी हम एक राजा हिजकिय्याह की तरह we are also in that situation हम भी कभी उस परिस्थिति में रहते हैं। where we feel we are completely defeated. कभी ऐसा लगता है कि हम हार चुके हैं। We think that nothing can happen, like no, this situation cannot change हम सोचते हैं कभी कि ये जो परिस्थिति कभी बदल नहीं सकती, because the enemy is waiting outside. क्योंकि जो एनिमी जो है दुश्मन है वो बाहर खड़े हैं। Oh, there is no time to pray. हमारे पास समय नहीं है प्रार्थना करने के And लिए, we start thinking like using our own ideas और हम हमारे खुद के जो है सोच लगाते हैं to fight a battle. वो जो बैटल को लड़ने के लिए। But let's remember one thing, लेकिन एक चीज सोचना है हमको, we must allow God to fight our battle. परमेश्वर को जगह देना है वो जो बैटल को लड़ने के लिए। God works when we are even still sleeping, परमेश्वर, हम जब सोते हैं तभी भी परमेश्वर काम करते हैं, because God can change any situation क्योंकि परमेश्वर जो है कोई भी परिस्थिति को बदल सकता है in just a moment. कुछ ही क्षण में। Yes, prayer can change. It is prayer only that can change any प्रार्थना situation. ही है जो हर एक परिस्थिति को बदल सकता है। The question today which we all can ask ourselves, प्रश्न जो है आप पूछ सकते हैं,
Are we asking God for guidance in हाँ। even small things? हम छोटे छोटे चीज़ों के लिए भी परमेश्वर का राय पूछते हैं। Let's not give up. हम हार नहीं मानना है। Let's not lose heart when things don't work in our way. हमको अपने आप को खोना नहीं है जब आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे तरह से नहीं हो रहे हैं। Let's remember what we heard today. हम ये सोचना चाहिए हमने आज क्या सीखा। The key is there with us. हमारे पास चाबी है, The prayer key is there. प्रार्थना की चाबी है। Now it's up to you, us, और वो हमारे हाथ में है, हमको उसको कैसे उपयोग करना है whether to use it or not to और use it. उपयोग करना है कि नहीं करना So है। another reason why we need to pray. अगला कारण जो है प्रार्थना क्यों करना है। When you pray for others, आप जो है दूसरों को जब दूसरे के लिए जब प्रार्थना करते हैं, God hears our prayer परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है and their lives are changed. और उनकी जो जीवन जो है बदल जाता है। Suppose somebody is not treating you properly, ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपको अच्छी तरह से वो बोलते नहीं या बातचीत नहीं करते। what happens in क्या that case? क्या होता है उस समय? You try to stay away from that person, आप उनसे दूरी बनाए रखते हो or inside you may have hatred for that person. या ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर उस व्यक्ति के लिए नफरत हो जाती है। Like as I said, the Pharisees outwardly they were showing they were good, जैसे मैंने कहा फरीसी लोग जो है बाहर से बहुत अच्छी तरह से दिखाते but थे, inside they were like unclean. लेकिन अंदर से वो लोग बहुत गंदे थे। Same thing can happen to us too. हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। Like we can love that person outwardly, हम बाहर से उस व्यक्ति से प्रेम कर सकते हैं, but inside we may have that hatred. लेकिन अंदर से हम उनसे नफरत करते Maybe होंगे। something happened long back लेकिन ऐसा हो सकता है कुछ दिन पहले कुछ हुआ or हो recently, या अभी। but what does Jesus said लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है in the book of Luke, लूक में chapter 6 verse 28? छठवें चैप्टर में 28 वाक्य में Jesus is giving us instruction यीशु मसीह ऐसे कहते हैं how to treat those people ऐसे लोगों के साथ हम कैसे बोलना चाहिए या कैसे भी रहना चाहिए whom we do not like. जिसे हम पसंद नहीं करते। The world will teach us completely different. दुनिया जो है हमको कुछ अलग ही सिखाएंगे। Like for example, if somebody has not treated you properly, जैसे उदाहरण देना चाहता हूँ कि आपके साथ अगर किसी ने अच्छा बर्ताव नहीं किया हो, the world tells us to take revenge. दुनिया ऐसे बोलती है कि आप उनसे बदला लीजिए। I remember like long back there was a missionary. मुझे ऐसे याद है कि बहुत साल पहले एक ऐसे मिशनरी थे। I think many of you all have heard about Graham Staines. आपने ग्राहम स्टेन के बारे में सुना होगा। So like Graham Staines family, like Graham Staines and both the children were burnt alive. ग्राहम स्टेन और उनके जो बच्चे थे उनको जिंदा जलाए गए थे। But what did Graham Staines' wife do? लेकिन उनकी जो पत्नी ने क्या किया, She forgave. उनको माफ कर दिए। It's not easy to forgive somebody, ऐसे आसान नहीं है किसी को ऐसे माफ करना, but that's what the Bible says. लेकिन परमेश्वर का वचन ही ऐसे कहता है। In Luke chapter 6 verse 28, लूक 6:28 में it says to bless those ऐसा कहता है कि उनको ऐसे आशीष दो who curse you जो आपको शापित देते हैं, and pray for those और उनके लिए प्रार्थना कीजिए who mistreat you. जो आपसे बुरा बर्ताव करते हैं। Really, like it's easy to read, ये पढ़ना बहुत आसान है, but when it comes to practically apply in our lives, लेकिन हमारे जीवन में जब इसका उपयोग करना होता तब it's not very easy आसान नहीं है, because we cannot treat properly the person who is mistreating you. क्योंकि जो भी हमसे बुरा बर्ताव करता है उनके साथ अच्छी तरह से बर्ताव करना But why नहीं Jesus होता। must be telling us to do this thing? लेकिन यीशु मसीह हमसे ऐसा क्यों कहते हैं? Why Jesus is telling to pray for our enemies? और यीशु मसीह क्यों कहते हैं कि हमारे दुश्मनों के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए? If we see like Apostle Paul, हम जब पॉल के बारे में देखते हैं, he was not a very nice person, वो अच्छे व्यक्ति नहीं थे, especially for the Christian. क्रिश्चियन लोगों के लिए वो अच्छे नहीं थे। Whether it was the Bible says whether it was man or the woman, बाइबल ऐसे कहते हैं चाहे वो आदमी हो या स्त्री हो,
he used to go and catch them and put them in prison. वो जो है उनको पकड़ते थे और उनको जेल में डालते थे। So do you think like at that time you would have prayed for Paul? क्या आप सोच सकते हैं कि उस समय आप पॉल के लिए Maybe प्रार्थना करेंगे? we would have prayed like God take away this Paul, destroy him. हम ऐसे सोच सकते हैं कि परमेश्वर पॉल को लीजिए और उनको नाश कर दीजिए। But that was not God's plan. लेकिन परमेश्वर का जो प्लान योजना ये नहीं थी। But in fact God changed his heart. लेकिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने पॉल के हृदय को बदल दिया। And this same apostle Paul, यही जो अपोस्टल पॉल है, like who was earlier mistreating the Christian, जो पहले क्रिश्चियन लोगों के साथ बुरा बर्ताव करते थे was spreading Christianity. और क्रिश्चियनिटी के बारे में या गुड न्यूज़ के बारे में बात फैलाई उन्होंने। So you can see like in a moment आप देख सकते हैं कुछ क्षणों में ही God can change any situation. परमेश्वर कोई भी परिस्थिति को बदल सकता है। That's why Jesus said, इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, bless those who curse you जो भी आपको श्रापित देते हैं उनको आशीष देना, and pray for those who mistreat you. और जो भी आपसे बुरा बर्ताव करते हैं उनके लिए प्रार्थना करना। What happens when we pray for our enemies? जो क्या होता है जब हमारे दुश्मनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं? Prayer releases the Holy Spirit. प्रार्थना जो है पवित्र आत्मा को देते हैं And it will convict that person और वो पवित्र आत्मा जो है उस व्यक्ति से बात करता है and bring him or her to repentance. और वो उनसे बात करके उनकी गलतियों का एहसास जो भी है वो बताते हैं। So even though you do not like that person who is mistreating you, आपको पसंद नहीं है वो व्यक्ति जो आपसे बुरा बर्ताव किए हैं, but let's pray for that person लेकिन उस व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं because Jesus has told us to do so. क्योंकि यीशु मसीह ने हमसे ऐसे कहा है। Whether it is your boss who is mistreating you, ऐसा हो सकता है कि आपके जो बॉस ने आपसे बुरा बर्ताव किया हो, or if it is your colleague, या आपके दोस्त, maybe for the school children, maybe their teachers, स्कूल के बच्चों के लिए उनके टीचर, but pray for them. उनके लिए प्रार्थना करना। So prayer is something can change any circumstances. प्रार्थना ऐसी चीजें हैं जो कोई भी परिस्थिति को बदल सकता So है। James chapter 5 verse 16, याकूब के 5:16 में ऐसे बोला गया है, it's saying that we need to pray for one another. ऐसे बोला गया है कि हमको एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। In a hospital, एक हॉस्पिटल में जो है, this is a real story. एक ऐसे सही वाली कहानी है जो हुआ है, It happened in US. एक यूएस में हुआ। So what they did, they made two groups of patient. पेशेंट के दो ऐसे गट बनाए गए थे। So one group, like they said, we will pray for this group of patient. एक गट ने ऐसे बोला कि हम ऐसे पेशेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। And another group, the patients were not prayed upon. दूसरा जो गट है उन्होंने प्रार्थना नहीं की है। So they said like we will follow this every day prayer for at least a month. उन्होंने ऐसे कहा कि जो पहले गट वालों ने कि हम प्रार्थना करेंगे 1 महीने तक के लिए। So they found out उन्होंने ऐसे देखा the patients who were prayed upon, जिसके ऊपर जो ऐसे जो पेशेंट है उनके साथ जो प्रार्थना किए थे, they recovered much quickly. वो जल्दी ही चंगाई पा चुके थे। Then compared to the patients who were not prayed upon. जो दूसरे गट थे जो प्रार्थना नहीं किए थे, उनकी जो चंगाई का ये था वो आराम से हो रहा था, नहीं हो रहा था। That's why we need to pray for one another. इसीलिए हमको एक दूसरे के साथ प्रार्थना करना चाहिए। As I already said, जैसे मैंने पहले कहा, that many times what happened ऐसे बहुत समय ऐसा हो सकता है during like when we are in a problem, हम जब समस्या में होते हो तो prayer is becomes our last option. प्रार्थना जो है हमारा जब लास्ट ऑप्शन होता है, When nothing happens, कुछ भी नहीं होता है तब we go to pray. We pray. हम प्रार्थना करते हैं। Like many times in the hospital also you see, हॉस्पिटल में आप देखते when होंगे the patient everything has failed, like the doctor says all the parts have failed. डॉक्टर ऐसे बोल सकते हैं कि कुछ भी नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो गया है And तब doctor himself says only you need to pray. डॉक्टर खुद ही कहते हैं कि आप सिर्फ प्रार्थना कीजिए। But we should not do what the world does. हमको दुनिया जैसे करती है वैसे नहीं करना है। Prayer should not be our last option, प्रार्थना जो है हमारे आखिर का चुनाव नहीं होना but चाहिए, it should be our first response. लेकिन हमारा पहला चीज होना चाहिए। When we have no strength left, हमारे पास अगर कोई भी ताकत नहीं रहती है तब prayer is something प्रार्थना ऐसी चीज है that makes room for God's strength. एक कमरा बनाती है प्रार्थना के परमेश्वर की ताकत के लिए। What you cannot change with your own effort, आप अपने आप जब कोशिश करते जब होता नहीं है, God can change that through prayer. परमेश्वर बदल सकता है प्रार्थना के द्वारा।
So we see that God still hears our prayers, हम ऐसे देख सकते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, but it should be cried out in लेकिन faith. हमको विश्वास से उसको रोना चाहिए। Like how King Hezekiah poured out his heart. जैसे किंग हिजकिय्याह ने अपने हृदय को परमेश्वर के सम्मुख रखे, Like King Hezekiah poured out his heart to God, किंग हिजकिय्याह ने अपने हृदय को परमेश्वर के सम्मुख रखे and God heard him. और परमेश्वर ने उनकी बातों को सुना। In fact, God Himself said, और परमेश्वर ने ऐसे कहा, "Since you poured out your heart to me, किंग हिजकिय्याह ने प्रार्थना किया इसलिए I have heard you." मैंने तुम्हारी बातों को सुना। So let us not stop praying. हम प्रार्थना करने के लिए रुकना नहीं चाहिए, Let us not lose heart हृदय को खोना नहीं चाहिए। when situation still is not under control. जब परिस्थिति हमारे अंदर हमारे हाथ में ना हो तो Like let's remember one thing: एक चीज याद होना चाहिए, whatever it is, कुछ जो भी हो, God is still in control. परमेश्वर सब चीजों को कंट्रोल में रखता है। Whatever your unanswered prayer, अगर आपके प्रार्थनाओं को नहीं सुने हो तो भी your fear, आपके डर को, just take it to God in prayer. ये सब चीजें परमेश्वर के सम्मुख रखो प्रार्थना के द्वारा। So finally, I would like to close. आखिर में मैं बताना चाहता हूँ, Just listen to me carefully. आप सुनिए। Prayer may not change everything immediately, प्रार्थना जो है तभी का तभी कुछ बदल नहीं सकता, but it always changes the one who prays. लेकिन उस व्यक्ति को बदल सकता है जो प्रार्थना करता है। So let's not give up praying. इसलिए प्रार्थना करने के लिए बंद नहीं करना। Amen. आमीन। Let's pray. प्रार्थना कीजिए। Thank you, Lord, for your today's message, O Lord. परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आज के संदेश के लिए। Thank you, Lord, for speaking to us, O Lord. धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपने हमसे बात किया। Yes, Lord, we want to depend upon you always, O Lord. हाँ परमेश्वर, हम हर एक चीज के लिए आपके ऊपर डिपेंड होना चाहते हैं। We want to build that relationship in prayer, O Lord. हमको प्रार्थना के द्वारा एक ऐसा संबंध बनाना चाहते हैं आपके साथ। Lord, if there is anyone over here, O Lord, परमेश्वर, ऐसा कोई भी एक व्यक्ति हो यहाँ पे who wants to develop that relation, O Lord, जो ऐसे संबंध आपके साथ बनाना चाहते हो तो help him, Lord. उनको मदद करना परमेश्वर, Yes, Lord, help us to completely rely upon you, O Lord, मदद करना परमेश्वर। हमें हर एक चीज के लिए आपके ऊपर निर्भर रहें, and not on our own strength, O Lord. हमारे ताकत के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। Each day, O Lord, draw us closer to you, O हर Lord, एक दिन परमेश्वर आपके पास हमको ले आइए through prayer, O Lord. प्रार्थना के द्वारा। Once again, Lord, we want to thank you, Lord, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर for this church, O Lord, एक कलीसिया के लिए, for each and every one over here, हर Lord, एक जो व्यक्ति यहाँ पे है and those members who are not here, O और Lord. हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे आज नहीं है, We pray for them, O Lord. उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। Lord, we pray, O Lord, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, that each and every day in our life, O Lord, हर एक दिन हमारे जीवन में you lead us and guide us, O Lord, हमको चलाना और राह दिखाना परमेश्वर, because we know, Lord, क्योंकि हमको पता है परमेश्वर, that you have a great plan for each one of us, O क्योंकि Lord, हर एक व्यक्ति के लिए, हमारे जीवन के लिए आपके पास एक अच्छी योजना है and help us to follow all the days of our life, O Lord. और हमको जो है आपके पीछे हो लेने के लिए मदद करना परमेश्वर। We pray for our pastor and family, O हम Lord, प्रार्थना करते हैं हमारे पासवान और उनकी फैमिली के लिए as they are in the main church Andheri, O जो Lord. मेन चर्च में है आज परमेश्वर, Give them a beautiful time over there, O अच्छा Lord. वक्त देना परमेश्वर। And also we pray for each one of us, O Lord, हम हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, for our upcoming week, O Lord. जो आने वाला हफ्ता है उनके लिए। Yes, Lord, we have plans, O Lord, हाँ परमेश्वर, हमारे पास भी अपनी योजनाएं हैं, but you have greater plans for us, O लेकिन Lord. आपके पास हमसे भी बेहतर योजनाएं हैं। Speak to each one of us, O Lord. हर एक जन से बात करना परमेश्वर Give us a beautiful week ahead. और अच्छा एक हफ्ता देना परमेश्वर, In Jesus' most precious name we pray. यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. स्तुति मेरा
क्यों ना हम छोटा ताली बजाते हुए संदेश के लिए है ना, अनुवाद के लिए भी। तो बहुत अच्छा संदेश था कि प्रार्थना के विषय में है ना। तो जस्ट मैं सोच रहा था उस विषय के बारे में कि हम मनुष्य हैं, धरती पे है ना, और प्रार्थना जो है हमारे लिए परमेश्वर के द्वारा उपाय किया गया है ना। और हमारी प्रार्थना में सिर्फ हम अकेले नहीं हैं, ओके। हमारी प्रार्थना में जो है पिता है जो हमारी सुनता है ना, और पुत्र जो है हमारी प्रार्थना उस पिता के सामने रखता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हम जानते नहीं कि कैसे प्रार्थना करना है, लेकिन वो जो है रोमियो का 8 में बोलता है कि वो हमारी प्रार्थना को जो है कैसे रचना है वो रचता है ना। और हम नहीं जानते प्रार्थना कैसे करना है, लेकिन वो हमारे ओर से आहे भर भर के जो है प्रार्थना करता है। सोचिए, और ये भी याद रखिए कि प्रार्थना वो है जो स्वर्ग के द्वार को खोलती है, और स्वर्ग का द्वार कभी हमारे लिए बंद नहीं होता है। और प्रार्थना जो है हमारे लिए वो चाबी दी गई है, वो कभी गुम नहीं हो सकती है, लेकिन हमारे ऊपर है। लेकिन क्या हम वो चाबी को लेके खोलना चाहते हैं, है ना। हमारे पास परिस्थितियाँ हो सकती है, बहुत तकलीफें हो सकती है, लेकिन वो चाबी हमारे पास है। संसार के द्वार हमारे लिए हमेशा क्लोज होंगे। आज ये द्वार है, बंद होगा, कल वो द्वार है, बंद होगा, लेकिन परमेश्वर का द्वार, स्वर्ग का द्वार कभी बंद नहीं होगा। और उसको खोलने के लिए सिर्फ वही है, वो है प्रार्थना। तो एक विश्वासी के पास वो सामर्थ्य की बात है, लेकिन इस संदेश को लेके जाते हो, प्रार्थना करते हैं ना। तो आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, जो आपने हमारे लिए उपाय करके दिया है गॉड, कि हम प्रार्थना कर सकते हैं, आपके साथ हम बात कर सकते हैं परमेश्वर। हाँ पर परमेश्वर, हम आपके वचन से प्रभु आपकी आवाज़ सुनते हैं, लेकिन प्रभु जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप हमारे शब्दों के द्वारा प्रभु हमारी प्रार्थना सुनते हैं गॉड। प्रभु धन्यवाद देते प्रभु, आज जो हमने वचन सुना उसको प्रभु हम अपने मन में, अपने हृदय में रख छोड़े परमेश्वर, ताकि प्रभु ये 100 गुना फल लेके आ सके। और प्रभु हम प्रार्थना करते इस कलीसिया के तमाम प्रभु हर एक परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। हर एक से बात करिए, यहाँ पर आए हुए हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपते हैं। जब यहाँ से वापस जाते हैं पूरे हफ्ते परमेश्वर, आप हमें अगुवाई करिए, संभालिए। और प्रभु धन्यवाद देते परमेश्वर, आपने प्रभु पिछले दिनों में संभाला है और आने वाले दिनों में संभालेंगे परमेश्वर। खास करके हम प्रार्थना करते हैं, 5 बार उनके फैमिली को आपके हाथों में सौंपते हैं, कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। जय मसीह।